Today, the old financial order is fracturing. Trust is expensive. Oversight has turned into overreach. Privacy is vanishing. And the sovereignty of real economies has long been systemically stripped away. But on the blockchain, a new possibility is taking root. It is driven by consensus, forged by protocol, and carried by civilization. We call it the Origin Digital Civilization Trilogy. Origin, Awakening, Eternity. From the first spark to sovereign awakening to protocol eternity, Origin is the path toward digital self-sovereignty for humankind. In a world where everything is programmable, Origin sparked the first institutional fire. The launch of LGNS bond incentives drew participants into a chain-based economic loop, embedding incentive mechanisms and supply-demand logic into protocol code. Lines of code evolved into an early form of economic order. This was the genesis of the crypto world, a foundational layer of civilization forged by a network of believers. The awakening of civilization is not conquest, it is awareness. Once the incentive flywheel turned and the economic core stabilized, Origin entered its second chapter, Awakening. Here, sovereignty rises and privacy reclaims its place. Users are no longer passive participants. They become the authors of their own assets, identities, and data destinies. The A-stable currency launches, anchoring value beyond the US dollar. The A-Pay system goes live, enabling borderless, permissionless, unfreezable anonymous payments. LGNS bonds continue to fuel the economy in a closed, sustainable cycle. DAO governance evolves into the signer mechanism, replacing vote thresholds with protocol participation rights. This is the true entrance to the ecosystem. It's a time of application rollout, identity awakening, and sovereign reconstruction. We are no longer users. We are signers of the system, builders of consensus. When the ecosystem begins to self-operate, when the protocol gains evolutionary capacity, Origin enters the third chapter, Eternity. This is no longer about growth curves or user counts. It is about sustained coherence, intelligent interaction, and a living, breathing digital civilization. Real-world assets, RWA, are brought on-chain, bridging the arteries of value between the physical and digital worlds. AI and ZK technologies forge a smart, privacy-preserving society. Autonomous metaverses and sovereign identity systems give rise to civilization islands. A protocol world with infinite potential begins to bloom. From the first spark to today's privacy awakening and toward a future of self-evolving digital order, Origin is not just a financial protocol. It is a self-evolving system of on-chain civilization. We now stand in Phase 2, Awakening. This is not merely ecosystem expansion. It is a collective reawakening of sovereign awareness. Detrusting, decentralizing, de-dollarizing. These are not slogans. They are systemic necessities. Origin does more than change how we pay. It awakens a generation's imagination and commitment to digital sovereignty. From ignition to awakening to eternity, this is the trilogy we forged together. This is also the core mission of Origin. To replace authority with contracts, to rebuild order with consensus, and to carry the unfinished dream of human liberty into the age of chain-based civilization. Protocols may evolve, but civilizations endure, and the river of consensus flows ever forward. Origin, the protocol of digital civilization. Welcome to Crocodile, the simple, all-in-one sharpening system that helps
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। घर की जूम में उपस्थित सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। तो साथियों, आज सुबह हम आपके बीच पुनः उपस्थित है वर्ल्ड के एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट ओरिजिन अवेक को लेकर और उसके नेटिव टोकन एलजीएनएस के बारे में जानकारी साझा करने के लिए। और आज का सेशन तो खैर मुझे लेना था, लेकिन ड्यू टू मेरे पास यहाँ लाइट नहीं है तो मैंने सद्दाम भाई से रिक्वेस्ट किया है। तो हम सद्दाम भाई के सेशन का सभी साथियों को बहुत इंतजार रहता है और सद्दाम भाई बहुत बेहतरीन तरीके से अपना प्लान प्रेजेंटेशन, बहुत से मैकेनिज्म के बारे में जानकारी साझा करते हैं। तो मैं जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करता हूँ आज के हमारे स्पीकर भाई सद्दाम हुसैन जी को। सद्दाम भाई, आप आए और आज के सेशन की शुरुआत करें। सर, ओवर टू यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद जोशी सर। यस सर, आप सभी वेलकम। लोगों को गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और जोशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद मंच देने के लिए। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग एक अच्छी सी मोटिवेशन के साथ में। मेरी आवाज आ रही प्रॉपर जोशी जी? हाँ सर, क्लियर है, ओके स्क्रीन भी। ओके सर, ओके सर। जैसा कि जोशी सर ने बोला है कि वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी अवेकन ओरिजिन के अंदर आपका स्वागत है। हम सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड का बेहतरीन प्रोजेक्ट है अभी इस समय अगर हम बात करें, उसका नाम है ओरिजिन अवेकन। एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, हम लोग शेयर करने से पहले, प्रोजेक्ट दिखाने से पहले हम डिस्क्लेमर शेयर करते हैं। हम जो चीज़ें दिखाते हैं वो एजुकेशन पर्पज से है। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, कोई सलाहकार नहीं है। और हम जो चीज़ें दिखाते हैं उसको आप क्रॉस चेक करें, वेरीफाई करें और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके सिस्टम में काम स्टार्ट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 7 मार्च 2024। जिस कम्युनिटी ने इसको बनाया था उसका नाम है डाउ। डाउ का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक ऐसा संगठन है जिसका सारा का सारा काम ऑटोनोमस तरीके से चलता है और पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट से कंट्रोल होता है। उसके बाद में इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए टोकन की आवश्यकता होती है क्रिप्टो के अंदर, जिसका नाम है एलजीएनएस। और इस एलजीएनएस की जो पेयरिंग है वो डाई के साथ में, यानी कि एलजीएनएस के बदले में हमको क्या मिल सकता है और डाई के बदले में क्या मिल सकता है। ये जो यू नेटवर्क यूज करता है वो वेब3 नेटवर्क है और ये दो ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है। पहली ब्लॉकचेन है पॉलीगन, जो आप सब लोग मेटिक के नाम से जानते हैं। दूसरी है अनुबी, जो इनकी खुद की ब्लॉकचेन है। तो ये दोनों ब्लॉकचेन पे ये रन करता है पूरा प्रोजेक्ट। अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बात करें, अगर हम टोकन की बात करें, क्रिप्टो की बात करें हैं, तो टोकन कहीं ना कहीं लिस्ट होता है। तो हम लिस्ट की अगर बात करें तो इसकी जो लिस्टिंग है वो डेक्स स्कैनर के ऊपर है। और अगर हम इसकी ट्रेड की बात करें तो ट्रेड इसकी क्विकसेप पे होती है और रॉकेटसेप पे होती है। ठीक है। क्विकसेप जो है वो पॉलीगन की ब्लॉकचेन का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है और रॉकेटसेप अनुबी ब्लॉकचेन का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। अगर हम डेपी की बात करें तो टोकन पॉकेट, बिटगेट, पेपाल या वेब3 सपोर्ट जो भी वॉलेट है जो आपको कंफर्टेबल लगे वहां पे आप चला सकते हैं। अनुबी जो ब्लॉकचेन है वो ज्यादातर बिटगेट पे कंफर्टेबल है। ठीक है। और पॉलीगन को आप पेपाल पे चलाइए, एक्सवाइजेड किसी पे चलाइए, वो कंफर्टेबल है। उसके बाद में अगर हम बात करें, ओरिजिन जो है वो आपको प्रॉमिस जो करता है वो आपको एलजीएनएस के बदले एलजीएनएस प्रॉमिस करता है। ना आपको डॉलर प्रॉमिस करता है, ना आईएनआर प्रॉमिस करता है। वो आपको टोकन के बदले टोकन देता है। ये कोई मनी गेन प्लान नहीं है, ये कोई 2x की स्कीम नहीं है, 4x की नहीं है। ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोग्राम है। जिस तरह से आप बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना या XYZ जो भी क्रिप्टो आप होल्ड करते हो, जिसको आप पोर्टफोलियो समझ के अपने वॉलेट में रखते हो, उसी तरह से आप एलजीएनएस के भी पोर्टफोलियो समझ के आप रख सकते हो। अगर इसके की फीचर्स की बात करें तो ये जो प्रोजेक्ट है ये 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बना हुआ प्रोजेक्ट है। अगर हम बात करें डाउ की, तो डाउ इसी को बोलते हैं।
कि 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पूरे प्रोजेक्ट को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद में ये कोई प्री माइंड टोकन नहीं है, पहले से बना के नहीं रखा गया। जैसे एग्जांपल की बात करें तो बिटकॉइन की सप्लाई 2,10,000 है, 2 करोड़ 10 लाख है, 2 करोड़ 10 लाख है, लेकिन वो पहले से बना के रख दिया गया। लेकिन उसकी माइनिंग होती है, ठीक है, तब जाके बिटकॉइन बाहर आता है। हाल्विंग होती है और माइनिंग होती है, तभी बिटकॉइन बाहर आता है। अगर इसकी कोई प्री माइंड टोकन नहीं है तो इसकी कोई टोकनोमिक नहीं है, यानी कि पहले से अलग अलॉट नहीं है कि किसी को अलॉट कर रखा है या इतना परसेंट इतना इसको मिला, इसका इतना परसेंट इसको मिला, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर हम बात करें, ये आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे देखने को नहीं मिलेगा। अगर इसकी बाई सेल और करनी है तो आपको क्विक सेप पे या रॉकेट सेप पे इसकी बाई सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इस प्रोजेक्ट के मेन बुलेट पॉइंट पे। यहाँ कोई ज्वाइनिंग पैकेज नहीं है, प्रोजेक्ट है, आपकी इच्छा है, जितना आप डालना चाहें उतना डाल सकते हैं, आपकी लिमिट है। यहाँ आपके फंड लॉक नहीं होता। जैसे आपने आज डिपॉजिट कर दिया तो ऐसा नहीं कि आपका फंड लॉक हो गया, आप अपना फंड 24/7 कभी भी निकाल सकते हैं। यहाँ स्टेकिंग की अगर बात करें तो यहाँ 0 डे स्टेकिंग है। मतलब ये है कि आपने अपना फंड स्टेक किया तो आप अपना फंड अनस्टेक कर सकते हो 24 आवर्स, जब भी आप इच्छा चाहें। अगर हम इसी तरह बाइनेंस की अगर बात करें तो अगर बाइनेंस पे भी अगर आप स्टेकिंग कर देते हो तो वहां पे भी आपको लॉकिंग मिलती है। आपसे पूछा जाता है कि आपका फंड कितने दिन के लिए लॉक करना चाहते हो, 3 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 12 महीने। जितने दिन के लिए आप वहां स्टेकिंग डालोगे उतने दिन तक आप अपना फंड नहीं निकाल सकते। उसके बाद में अगर हम बात करें, यहाँ वो कैपिंग सिस्टम नहीं है। जब हम काम करते हैं तो हमारे इनकम पे एक लिमिट लग जाती है, उसको हम कैपिंग बोलते हैं। तो यहाँ कोई लिमिट और कैपिंग सिस्टम नहीं है। यूनिफॉर्म रिटर्न, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सभी लोग समान है। $1 लगाने वाले को उतना ही है जितना कि $1,00,000 वाले को। उसके बाद कोई मिनिमम कोई मैक्सिमम अनस्टेकिंग लिमिट नहीं है, यानी कि आपको बाउंडेड नहीं किया गया है कि आपको मिनिमम और मैक्सिमम अनस्टेकिंग लिमिट हो। यहाँ कोई रेनुअल चार्जेस नहीं है, कोई सालाना फीस नहीं है, 2 साल की कोई फीस नहीं है। उसके बाद में अगर हम बात करें, यहाँ कोई विड्रॉल मैकेनिज्म नहीं है। अगर विड्रॉल मैकेनिज्म की आपका मिडलमैन कोई नहीं है, बैकएंड में कोई बंदा विड्रॉल को प्रोसेस नहीं करता है, आपका फंड है, आप जब चाहे तब अनस्टेक करके स्वैप कर सकते हैं। उसके बाद में आपके फंड के साथ कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, आपके फंड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। यानी कि आज अगर मैं आपको अप्रोच करके लेके आता हूँ तो एक मन में एक टारगेट होता है कि आप मेरी वजह से आप आ जाओ सिस्टम के अंदर। क्यों? क्योंकि आपकी वजह से मुझे कुछ मिलेगा। यानी कि आप वन टाइम कमीशन, सेटिंग शूटिंग कुछ भी है, लेकिन ऐसा सिस्टम यहाँ पे कुछ भी नहीं। जितना फंड आपने डिपॉजिट दिया है उतना ही फंड आपके वॉलेट में रहता है, यानी कि पर्टिकुलर किसी थर्ड पर्सन को कुछ पेमेंट नहीं पड़ता। उसके बाद 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट। अब ये 100% डिसेंट्रलाइज के अंदर मार्केट के अंदर लोग डिसेंट्रलाइज बोल के हमको चूरन दे देते हैं। सर ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, इसमें काम करो, ये वो सब चीजें। और उसके बाद में हम कर भी लेते हैं उनके कहने पे। रीजन क्या होता है कि हमको नॉलेज की अभाव होती है। अगर नॉलेज की अभाव नहीं होती तो हम शायद हो सकता है उनकी वजह से डाइवर्ट ना हो। तो ये 100% डिसेंट्रलाइज है, इसको समझना आपको जरूरी है। कोई भी प्रोजेक्ट है आपके पास तो आंख बंद करके पैसा डालने से अच्छा है आप उस प्रोजेक्ट को R&D करो अपने अपने लेवल पे। आपकी रिसर्च कंप्लीट करो, रिसर्च कंप्लीट करने के बाद आप निर्णय पूछो कि क्या आपको इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए। हम जब किसी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो हम चीजें देखते हैं, पहला कम्युनिटी देखते हैं, इस प्रोजेक्ट पे कम्युनिटी कितनी है। दूसरा हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट कितना सेफ है, क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई है कि नहीं है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई है कि 10 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई है, क्या ओनरशिप री अनाउंस है कि नहीं है, क्या इसकी लिक्विडिटी है, उसकी कंडीशन क्या है। ये सब चीजें डिसाइड करती है कि क्या आपका प्रोजेक्ट अच्छा है बुरा, वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो एक उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, इसमें दो तरह के मॉड्यूल काम करते हैं, एक तो स्टैकिंग, एक तो नॉन वर्किंग और एक वर्किंग। अगर नॉन वर्किंग की अगर हम बात करें तो कोई भी इन्वेस्टर XYZ किसी भी अमाउंट से सिस्टम एंट्री लेता है तो सिस्टम हर 6 घंटे में उसको रिवॉर्ड देता है। जैसे मान लीजिए आपने एक 100 कॉइन परचेज किया और 100 कॉइन का आपने स्टेक कर दिया, तो सिस्टम हर 6 घंटे के अंदर आपको 0.15% से लेकर 0.3% आपको डेली रिवॉर्ड देता है, यानी कि हर 6 घंटे में रिवॉर्ड देगा। अगर इसको 24 घंटे में काउंट करेंगे तो 0.6% डेली का आपको यहाँ रिटर्न आएगा।
यानी किसका आएगा, मान लीजिए 100 कॉइन है तो 100 कॉइन का 0.6% आपको डेली काउंट कर सकते हो। महीने की कैलकुलेशन करोगे तो 18 से 19% या 20% तक का आपको रेशियो यहाँ पे बैठ जाता है। उसके बाद में आता है रेफरल इनकम। जब हम किसी को अप्रोच करते हैं या किसी को इनवाइट करते हैं तो वन टाइम कमीशन तो नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे रेफरल इनकम मिलती है। अब रेफरल कैसे मिलती है कि आपने किसी को इन्वेस्ट किया, यानी आपने किसी को कहा कि आप 1000 कॉइन ले लो, 2000 कॉइन ले लो एग्जाम्पल। अब उसको जितना भी रिटर्न आता है 0.6%, उसके एवज में हमको क्या आता है, वन टाइम तो कमीशन नहीं आता, लेकिन बार बार कमीशन आता है कि नहीं आता, उसके लिए भी इन्होंने रेफरल इनकम दिया है। इस रेफरल इनकम को लेने के लिए आपको मात्र मात्र $100 का, मात्र $100 का आपके पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, यानी $100 के कॉइन आपके वॉलेट में होने चाहिए। तो ये रेफरल इनकम का बेनिफिट आप ले सकते हो। अब रेफरल इनकम में क्या मिलता है, रेफरल में मिलता है लेवल इनकम। अब ये लेवल कैसे काउंट होती है कि जब आप किसी को स्पॉन्सर करते हो या आपसे डायरेक्ट लगाते हो तो उसको हम पहला लेवल बोलते हैं। मान लीजिए आपका A B C D X Y Z जो भी आपने जितने भी डायरेक्ट रेफरल किए वो आपके सारे पहले लेवल में आएंगे। उनका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो भी रिटर्न जाएगा 0.6% अगर उनको डेली जा रहा है तो आपको उसका आएगा 4 से लेके 8%। अगर 24 घंटे में उसको मिलता है तो 24 घंटे में आपको मिलेगा। अगर उसको हर 6 घंटे में मिलता है तो हर 6 घंटे में आपको मिलेगा। राइट है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड लेवल की। सेकंड लेवल के लिए सिस्टम कहता है कि आपका सेल्फ इन्वेस्टमेंट $300 का होना चाहिए। $100 का तो आपने रेफरल इनकम लेने के लिए डाल दिया। अब खाली आप $200 का इन्वेस्टमेंट और बढ़ा दीजिए आपकी वॉलेट के ऊपर, और एक स्पॉन्सर आप कर दीजिए, वो स्पॉन्सर आपका $100 का भी चलेगा। तो आपको सेकंड लेवल का आपको क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, 2.5% से लेके 5%। चाहे उसको सेकंड लेवल वाले को 6 घंटे में आता है तब भी आपको 6 घंटे में आएगा। अगर उसको 24 घंटे में आता है तो 24 घंटे में आपको, यानी कि ROI टू जैसे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसके बाद थर्ड लेवल की अगर बात करें तो थर्ड लेवल की इनकम लेने के लिए सिस्टम ने कहा कि भाई आपने $300 का तो आपके पास कॉइन है, आप $200 के कॉइन और बढ़ा लीजिए, तो आपके पास 3 लेवल का इनकम आने लगेगा। और 3 लेवल का इनकम लेने के लिए आपको टोटल 3 स्पॉन्सर चाहिए। 2 तो आपने पहले कर दिए और एक स्पॉन्सर आपने नया कर दिया। तो आपको थर्ड लेवल का क्या आएगा, 2% से लेके 4% आएगा। आपको किसका आएगा, 0.6% जा रहा हो, चाहे 0.15% या 0.30%, जो भी रिटर्न जाता है आपकी थर्ड लेवल पे इन्वेस्टमेंट का, उसके अकॉर्डिंग आपको आ जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें चौथे लेवल की, तो चौथे लेवल पर सेल्फ इन्वेस्टमेंट आपका $800 का चाहिए। 4 स्पॉन्सर आपके होने चाहिए, 3 आपने पहले कर दिए, एक नया कर दिया आपने। परसेंटेज की बात करते हैं 1.75% से लेके 3.5% आपको चौथे लेवल से भी आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में पांचवें लेवल की बात करें तो $1200 का सेल्फ इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको, और 5 डायरेक्ट आपके होने चाहिए, 4 आपने पहले कर दिए, तो आपको यहाँ पे 1.5% से लेके 3% आपको यहाँ पे भी आना स्टार्ट हो जाएगा। छठे लेवल पे बात करें तो $1700 का सेल्फ इन्वेस्टमेंट चाहिए, 6 डायरेक्ट होना चाहिए, 5 पहले कर दिए और एक स्पॉन्सर नया कर दिया, तो टोटल आपके 6 हो गए। तो आपको 1.5% से लेकर 3%, इस तरह से पूरा साइकिल स्टार्ट होता है। और ये रेगुलर का अगर बात करें तो टोटल 15 लेवल तक का आपको लेवल इनकम आता है। और जब तक आप 15 लेवल पे पहुंचते पहुंचते हो तब तक आपका सेल्फ इन्वेस्टमेंट $10,000 हो जाता है। राइट है। और टोटल आपके स्पॉन्सर की संख्या बढ़ जाती है कितनी, 15,000, सॉरी 15 स्पॉन्सर आपके हो जाते हैं। ये तो रहा आपका लेवल इनकम, जो आपको लेवल आता है। और जैसे 16 लेवल से आगे अगर आप बिजनेस चला जाता है, 16 17 18 19 20 लेवल पर अगर पहुंच जाता है, तो इस लेवल इनकम में आपको इसकी इनकम नहीं आती है। लेकिन आपके लिए एक इनकम और है कि आपको अनलिमिटेड लेवल का भी आपको यहाँ बेनिफिट मिल सकता है। और यहाँ पे आपको 15 स्पॉन्सर करने पड़ते हैं, वहाँ आपकी 3 लेग से 3 टीम से भी आपका काम हो सकता है। तो वो कैसे है, जिसको हम बोलते हैं डाउ रिवॉर्ड। ये डाउ रिवॉर्ड एक ऐसी इनकम है जो आपको अनलिमिटेड लेवल की इनकम के लिए कंसिडर करती है, यानी कि आपको अनलिमिटेड लेवल के लिए एलिजिबल करती है। लेकिन काम एक बार करना है, मेहनत एक बार करनी है, बेनिफिट आपको रेगुलर आना है। अब वो कैसे आना है, इस सिस्टम कहता है कि भाई आपकी एक रैंक होती है, उस रैंक को हम V1 बोलते हैं। इसको अचीव करने के लिए आपको एक लेग में $50,000 का बिजनेस होना चाहिए।
दूसरे लेग में $50,000 का बिजनेस होना चाहिए, और तीसरे लेग में $50,000 का बिजनेस होना चाहिए। ये बिजनेस जो है वो आपकी कोई जरूरी नहीं है कि 15 लेवल में हो, 12 में हो, 10 में हो, 5 में हो। आपका ये बिजनेस जो है वो आपका 100 लेवल में भी हो तब भी चलेगा, 50 लेवल में हो तब भी चलेगा, 1000 लेवल में हो तब भी चलेगा। बिजनेस सिस्टम काउंट करता है। सिस्टम खाली बिजनेस काउंट करता है, ये काउंट नहीं करता कि कौन से लेवल पे है। तो आप सिस्टम के V1 बन जाते हो। अगर V1 की अगर हम बात करें, तो ये जो जितने भी लोग हैं जो आपकी V1 रैंक को क्वालिफाई करवाए हैं, उनको जो भी रिटर्न जाता है, कौन सा रिटर्न, जो हर 6 घंटे में जाता हो या हर 24 घंटे में जाता हो, उसके एवज में आपको 1 से लेके 5% आपको यहाँ से आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे तो आपने V1 रैंक अचीव कर ली। बस खाली आपको क्लेम करने के लिए आपको एक NFT की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि आपने अचीव कर लिया, आपकी इनकम भी बनना स्टार्ट हो गई, लेकिन खाली क्लेम करने के लिए आपको एक अवेक NFT की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब आते हैं हम V2 के ऊपर। V2 बनने के लिए सिस्टम कहता है कि भी आपने $50,000, $50,000, $50,000 तीनों लेग में आपने कर दिया था। अब खाली आपको $1,00,000 का एक लेग में, और $1,00,000 का दूसरी लेग में, और $1,00,000 का तीसरी लेग में। यानी कि तीनों लेग में आपके $1,00,000 का बिजनेस हो जाता है। तो टोटल आपके $1.5 लाख का तीनों लेग में हो जाता है। तो आप सिस्टम के V2 बन जाते हो। यानी कि 50,000 आपको पुराना भी प्लस हो जाता है, 1 लाख नया, यानी टोटल 1.5 लाख एक लेग में, और दूसरी लेग में 1.5 लाख, और तीसरी लेग में $1.5 लाख का बिजनेस हो जाता है। तो आप सिस्टम के V2 बन जाते हो। अगर V2 इनकम की अगर हम बात करें, तो 2% से लेकर 10% तक की आपको V2 का रिवॉर्ड आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। इसके लिए भी आपको एक NFT है, जो आपने एक NFT आपने बाई करी थी, वो आपके V1 और V2 दोनों के लिए काम करेगी। उसके बाद में आते हैं V3 और V4 के लिए। तो V3 बनने के लिए सिस्टम में $3 लाख का बिजनेस आपकी एक लेग में चाहिए, 1.5 लाख आपका पहले था, और 1.5 लाख का नया चाहिए। तो टोटल कितना हो गया आपका? 3 लाख का एक लेग में, और 3 लाख का दूसरी लेग में, और 3 लाख का तीसरी लेग में। अगर जैसे ही ये हो जाता है, तो आप सिस्टम के अंदर V3 कहलाओगे। और V3 की इनकम की अगर बात करें, तो 4% से लेके 15% का आपको यहाँ पे इंसेंटिव आना स्टार्ट हो जाता है। किसका? जो आपकी टीम में 0.6 जा रहा है, या 0.15 से लेके 0.30। इसको रिवॉर्ड को क्लेम करने के लिए भी आपको एक NFT की रिक्वायरमेंट होती है। आपने एक NFT पहले बाय कर दी, एक NFT आपने एक और बाय कर ली, टोटल हो गई आपकी 2 NFT। तो अब आप V3 और V4 का दोनों का रिवॉर्ड क्लेम कर पाओगे। ठीक है। अब V4 बनने के लिए सिस्टम का बिजनेस चाहिए। $5 लाख का बिजनेस आपकी एक लेग में, दूसरे लेग में $5 लाख का, और तीसरे लेग में आपका $5 लाख का बिजनेस हो जाता है। तो आप सिस्टम के अंदर V4 भी बन जाते हो। अगर V4 की इनकम की बात करें, तो 6% से लेकर 20% आपको यहाँ से टीम रिवॉर्ड आना स्टार्ट हो जाता है। और रिवॉर्ड को क्लेम करने के लिए आपने एक NFT ऑलरेडी बाय कर दी, यानी टोटल 2 NFT में आपके टोटल V1 से लेके V4 तक के रिवॉर्ड आप क्लेम कर पाओगे। यहाँ एक सबसे अच्छी बात यह है कि आपका रिवॉर्ड बंद नहीं होता। यानी कि आपने अचीव कर लिया है, तो आपका रिवॉर्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब खाली क्लेम करने के, जब भी आपके पास NFT एडजस्ट हो जाती है, जब भी आपको NFT मिल जाती है, तब आप अपना रिवॉर्ड क्लेम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि NFT नहीं है तो आपके रिवॉर्ड नहीं बनेंगे। आपके रिवॉर्ड बनेंगे, लेकिन क्लेम करने के लिए आपके पास NFT होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें V5 और V6 की, तो V5 बनने के लिए आपको 1 मिलियन का बिजनेस आपकी एक लेग में होना चाहिए, और 1 मिलियन का आपकी दूसरी लेग में, और 1 मिलियन का आपकी तीसरी लेग में। जैसे ही आपका बिजनेस कंप्लीट होता है, आप सिस्टम के अंदर V5 बन जाते हो। V5 की अगर बात करें, तो 8% से लेकर 25% आपको यहाँ से टीम रिवॉर्ड से आना स्टार्ट हो जाता है। इसके भी रिवॉर्ड को क्लेम करने के लिए एक NFT की और रिक्वायरमेंट होती है, जो आप V5 की रिवॉर्ड को भी आप क्लेम कर पाओगे। ठीक है। उसके बाद में आता है V6। ये V6 बनने के लिए अब आपको आपकी तीनों लेग में एक V5, एक लेग में, दूसरी लेग में V5, और तीसरी लेग में V5। अब ये जो V5 है, ये जरूरी नहीं है कि आपसे डायरेक्ट भी हो, ये आपकी टीम में कहीं पे भी हो सकते हैं। लेकिन सिस्टम ये देखता है कि आपकी एक लेग में V5 है कि नहीं है, दूसरी लेग में V5 है कि नहीं है, तीसरी लेग में V5 है कि नहीं है। V5 तक आपका खाली बिजनेस काउंट करता था, और V6 पे आपका तीनों लेग में एक एक V5 होंगे, तो आप सिस्टम के V6 बन जाओगे। अगर हम V6 की बात करें,
तो 10% से लेकर 30% तक का टीम रिवॉर्ड आपको यहाँ आने लग जाता है, और ये एक बहुत बड़ी इनकम होती है। और जिन जिन लोगों ने इस इनकम को लिया है, आज उनकी लाइफ सेटल है, जिंदगी अच्छे से चल रही है। और मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत के साथ साथ सब चीजें अच्छी होती है। जैसे एक सीढ़ी चढ़ोगे, दूसरी सीढ़ी ऑटोमेटिक आपको नजदीक लगेगी, और दूसरी चढ़ोगे, तीसरी ऑटोमेटिक आपको नजदीक लगेगी। तो ये टोटल पूरा प्रोजेक्ट है जो आपको फाइनेंशियली फ्रीडम दे सकता है, और अच्छे लेवल पर, बड़े लेवल पर आप अपने ड्रीम पूरे कर सकते हो। फिर से एक डिस्क्लेमर है, हमने जो चीजें दिखाई वो एजुकेशन पर्पज से है। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, कोई सलाहकार नहीं है। और हमने जो चीजें देखा है उसको आप क्रॉस चेक करें, वेरीफाई करें। उसके बाद में आपको लगता है कुछ चीजें डाउट में रह जाती है, तो आप, जिसने आपको इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया है, आप उसे एक बार कोऑर्डिनेट करें और सिस्टम को समझे, सिस्टम को समझ के आगे बढ़े। और अगर हम बात करें टेक्निकल की, तो आप लोगों को सबसे अच्छा ये है कि आपको पूरा प्रोजेक्ट को रीड करना आना चाहिए, क्योंकि डिसेंट्रलाइज के नाम से बहुत से प्रोजेक्ट मार्केट में रन कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग हमारे एसेट को लॉस करवा देते हैं, और सेम प्रोजेक्ट दिखाते हैं, ये कहते हैं कि सर एलिजेंस के अंदर ये कमियां हैं, एलिजेंस की कमियों को हमने यहाँ दूर कर दिया है, सर हम इस विजन के साथ है। लेकिन उनके साथ में कोई विजन नहीं होता है, कोई टारगेट नहीं होता है, कोई प्लानिंग नहीं होती है। उनका एक ही मकसद होता है कि बने हुए बिजनेस को कैसे लिया जाए वापस। आज आप सब लोगों के पास जो फंड पड़ा हुआ है, वो एक ऐसा फंड है कि कोई भी व्यक्ति आपको माइंड को वॉश करके आपके फंड को अनस्टेक करवा के किसी और प्लेटफॉर्म पे ले जा सकता है, क्योंकि एलजीएनएस का एकमात्र ऐसा फंड है जो कभी भी 24/7 कभी भी निकाला जा सकता है। ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज को कुछ चीजों को चेक करने के लिए सिंपल सा है, आपके पास टूल्स होना जरूरी है। अगर हम बात करें तो डेस्क स्कैनर आपके लिए एक टूल्स का काम करता है। आपको डेस्क स्कैनर भी बहुत सी चीजें हैं जो आपको आरएनडी के तौर पे समझने मिलती हैं। अगर हम बात करें, आज अगर हम पूरी ब्लॉकचेन की बात करें, तो पॉलीगन की ब्लॉकचेन पर अगर हम चीज को चेक करते हैं, तो सबसे ज्यादा टॉप वॉल्यूम की अगर बात करें, तो सबसे ज्यादा टॉप वॉल्यूम है एलिजेंस के पास में। ठीक है। अब डिसेंट्रलाइज में हमको क्या चीज चेक करनी है, वो हमको देखना है। अब वो कैसे देखना है? डिसेंट्रलाइज को चेक करने से सबसे पहले हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। ब्लॉकचेन से बेटर इंफॉर्मेशन आप लोगों को कोई नहीं दे सकता, कोई थर्ड पार्टी टूल नहीं दे सकता है ब्लॉकचेन के अलावा। ठीक है। तो ब्लॉकचेन पे चेक करने के लिए आपको ये 0F01 हमारा टोकन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, और 5BF भी हमारे लिक्विडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। तो यहाँ अगर हमको ब्लॉकचेन टोकन चेक करना है, तो यहाँ सीधा ब्लॉकचेन पे जाओ। यहाँ आपको होल्डर भी प्रोफाइल दिखेंगे, आपको कॉन्ट्रैक्ट भी आपको प्रॉपर तरीके से दिखेगा। जिस कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, ये 0F01 है, और कॉन्ट्रैक्ट की पहचान ये फाइल है। और इसके होल्डर्स की बात करें तो 24,98,009 पॉलीगन के होल्डर्स है, खाली पॉलीगन के। राइट है। उसके बाद में हमको क्या चेक करना होता है? कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे तो सोर्स कोड वेरीफाई है। ठीक है। दूसरा हम चेक करते हैं कि हमारी ओनरशिप री अनाउंस है कि नहीं है। तो यह एडमिन डिफॉल्ट रोड का मतलब है 00 यहाँ पे। ठीक है। तो हमारी ओनरशिप री अनाउंस है। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे होल्डर्स, क्योंकि स्कैम का सबसे बड़ा हिस्सा होता है होल्डर्स। मालिक के पास अगर मैक्सिमम सप्लाई है, मैक्सिमम मैक्सिमम टोकन की टोकन होल्ड है, तो स्कैम होने के 100% चांस है। तो ये होल्डर लिस्ट है। इस होल्डर लिस्ट के अंदर आपको ये समझना है कि होल्डर कौन है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कौन है। ठीक है। अगर हम उसकी बात करें तो आप देखोगे ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है आपको BFC, और पहचान है इसकी ये फाइल। ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद ये नीचे कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद देखोगे आप एक 7 नंबर दिख रहा है, डेड वॉलेट। ये डेड वॉलेट हमारे जो टोकन बर्न हो जाते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे डेड वॉलेट में चले जाते हैं। उसके बाद में ये सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। धीरे धीरे नीचे आएंगे आप तो 23 नंबर का देखोगे एक एड्रेस है। ठीक है। एड्रेस की पहचान, आगे कोई फाइल नहीं है लेकिन पीछे कॉपी है। इस एड्रेस के ऊपर वॉल्यूम कितना पड़ा है? 0.0023।
यानी कि सारी चीजें आपको ट्रांसपेरेंट है, आप अपने लेवल पे R&D करेंगे जिससे आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब मैक्सिमम सप्लाई जो है पर्टिकुलर किस पे, 95%, वो किस पे है, BFC पे। ये BFC है क्या, इसको भी आप ओपन करके देख सकते हैं। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे देखोगे ग्रीन डॉट के साथ में यहाँ पे सोर्स कोड वेरीफाई है। उसके बाद ट्रांजेक्शन चेक करना आपको खाली, कि ये जो BFC है ये किस चीज के लिए काम आ रहा है। जैसे आज हम आज हम लोग फंड को स्टे करते हैं और अनस्टे करते हैं, या हमारा कोई भी प्रॉफिट आता है या कोई भी इंटरेस्ट क्लेम वगैरह आता है, वो सब हम यहाँ पे क्लेम करते हैं। तो सारा ट्रांजेक्शन जो होता है वो यही बनता है। जैसे स्टेक हुआ है, स्टेक हुआ है 8 सेकंड पहले, 8 सेकंड पहले, 8 सेकंड पहले, 8 सेकंड पहले, यानी कि सारे ट्रांजेक्शन है जो हर सेकंड पे क्रिएट किए जा रहे हैं, हर सेकंड पे क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है। तो ये जो बहुत से लोग ऐसे ही, बहुत से लोग ऐसे ही हैं जो हमको इस तरह से डाइवर्ट करते हैं, तो आप चेक करना जरूरी है। ठीक है। ये तो था पॉलीगन के बारे में। उसके बाद में आप इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, अगर लिक्विडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को चेक करना चाहें तो आप यहाँ पे ये 5BFB है, यहाँ पे भी इसको भी ब्लॉकचेन पे जाकर चेक करें। ठीक है। ब्लॉकचेन से बेटर इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं दे सकता। आप देखोगे यहाँ पे ग्रीन डॉट दिखा आपको, और ये क्लिक किया हमने, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। 5BFB हमारा लिक्विडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और ग्रीन डॉट के साथ में है ये। और अगर हम होल्डर्स की बात करें तो ये होल्डर्स हैं। होल्डर्स में नीचे चलेंगे आप, तो एक सिंगल होल्डर्स है जिसके पास में लिक्विडिटी टोकन जो है, जब भी हम लिक्विडिटी डालते हैं तो कोई भी एक्सचेंज होता है, ठीक है, लिक्विडिटी, तो हमको टोकन मिलते हैं। तो लिक्विडिटी 99.99%, यानी कि 100% लिक्विडिटी टोकन कहाँ है, वो सारे के सारे कहाँ पे है, कॉन्ट्रैक्ट के पास। ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट है 5321। तो ये बहुत सी चीजें हैं। ये तो था डेक्स स्कैनर है। उसके बाद में आप बाइनेंस यूज कर सकते हैं। कुछ चीज आपको बाइनेंस में मिल जाती है। जैसे बाइनेंस है, अपना प्रोजेक्ट जो है Web3 प्रोजेक्ट है। आप यहाँ सर्च करोगे, आप लोगों की सेल्फ R&D मस्ट इम्पोर्टेंट है। जब तक आप सेल्फ R&D नहीं करोगे, ये Web3 एलजीनेस है। इसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन के ऊपर आपको सारी चीज आ जाता है कि सर्कुलेशन सप्लाई कितनी है, 4.7 बिलियन का है। ठीक है। अगर आप ट्रेजरी जाकर चेक करोगे तो वहाँ पे 4.7 बिलियन दिख जाएगा। यानी कि एक टोकन एक डाई के अगेंस्ट में बना है। ठीक है। मार्केट कैप है 582.86 बिलियन का मार्केट कैप है। सर्कुलेशन सप्लाई ये 4.7 बिलियन की। ठीक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये जिस पर बना हुआ है 0F01। ठीक है। उसके बाद में अगर डेटा की बात करें तो यहाँ पे ऑडिट की बात करें, ऑडिट के अंदर जो जो चीजें हैं रिजोल्व है वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्प्ले हैं। अपन यहाँ ऑडिट रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है। या आप अपनी सेल्फ R&D, आप सब लोगों के पास ये टूल्स अवेलेबल है, खाली यूज करना आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में Aave.ai है। Aave.ai से भी एलजीनेस ऑडिट है। ठीक है। ये Aave.ai से ऑडिटेड प्रोजेक्ट है। चेक करना है तो यहाँ पर चेक करो। यहाँ पर देखो ये ऑडिटेड है, ऑडिटर Aave.ai से। ठीक है। उसके बाद में होल्डर्स कितने हैं, 24,97,985 होल्डर्स हैं। डिटेल्स की अगर बात करें तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ अवेलेबल है। टोटल सप्लाई 86.3 मिलियन। उसके बाद में अगर हम बात करें, अभी हमने कहा है कि हमारा एलजीनेस दो ब्लॉकचेन पे है। एक तो एलजीनेस पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे है, एक एलजीनेस अनुबी की ब्लॉकचेन पे है। ये अनुबी की ब्लॉकचेन का है। अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे डिटेल्स, तो टोटल यहाँ 23,22,084 होल्डर्स है। वहाँ कितने दिखाए थे, 24 लाख। और यहाँ अनुबी के ऑर्डर कितने हैं, 23,22,000 होल्डर्स हैं। ठीक है। अगर हम डाई की लिक्विडिटी की बात करें तो 103.91 मिलियन की है, और एलजीनेस की बात करें तो 55.2 मिलियन है। ठीक है। और डिटेल्स की अगर बात करें, यहाँ पे भी, ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। और
अगर हम थोड़ा सा चेक करते हैं बैक में, एक चीज और दिखाता हूँ मैं आपको, जिससे आप चाहोगे रिस्क चेक करने के लिए। तो यहाँ पे देखो, ये सब चीजें मेंशन करेगी, टॉप टोकन होल्डर्स, स्टैकिंग, ठीक है। उसके बाद में क्विक शेप, एलजीएनएस डाई, क्लेम इंटरेस्ट, साइलेंस, ब्लैक होल, 8.1 मिलियन ब्लैक होल में जा चुके हैं। ये इस तरह से पूरा चीजें मेंशन है, आप अपने लेवल की, आप अपने हिसाब से आप आरएनडी करें तो बहुत सी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोशी जी, दोबारा आपको इनवाइट करूंगा। यस सर। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सद्दाम भाई आपका। और बहुत ही शानदार तरीके से आपका प्लान प्रेजेंटेशन और ये बाकी के तमाम टेक्निकल मैकेनिज्म और साथियों, ये सारे मैकेनिज्म रियली बताने का उद्देश्य यही है कि आप खुद इसको चेक करें, देखें। और जब हम खुद देखेंगे, खुद इस पर विश्वास करने लगेंगे, एक जो भरोसा हमारा हो जाएगा, तो हमें इस प्रोजेक्ट के साथ में काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और एक ये ऐसा प्रोजेक्ट है, ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी पहले कभी ऐसा कोई प्रोजेक्ट आया है और ना ही कभी कोई ऐसा आएगा, क्योंकि ओरिजिन फॉर एवर का है प्रोजेक्ट, सबके लिए है। और इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने के बाद हर एक व्यक्ति, जितने भी साथी हैं, जो भी हैं, हर किसी ना किसी को, जो भी अपने एलजीनेस वो स्टेक करता है, कुछ ना कुछ उसको जो रिवॉर्ड्स हैं वो प्रतिदिन के रूप में जरूर आते हैं और उससे उसकी जर्नी शुरू हो जाती है। तो बेस्ट विशेषकर नए साथियों के लिए कि आपको शुभकामनाएं इस प्रोजेक्ट के साथ बन- जुड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और कई हमारे साथी ऐसे हैं जो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़कर इसके डाउ रिवॉर्ड्स पाने के हकदार हुए हैं। तो आप सभी के लिए प्लेटफॉर्म ओपन है, आप भी इसके डाउ रिवॉर्ड्स प्राप्त कर सकते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत और जबरदस्त है। तो अभी हमारे बीच में को साथी के रूप में मैं देख पा रहा हूँ सोहन सिंह गुर्जर साहब उपस्थित हैं। तो हम सोहन भाई की ही जरूर शेयरिंग लेना पसंद करेंगे। यदि सोहन भाई आप कंफर्टेबल हैं तो आपका स्वागत है। और एक किसी वीवन साथी ने एड्रेस किया है, अदनान खान वीवन जी। चलिए, खान साहब को भी सुन लेते हैं। सर, आपको आज टू अनम्यूट किया है। यस सर। अस्सलाम वालेकुम। जी 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 जनाब, मैं स्वागत। पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, पेशावर से। अदनान खान मेरा नाम है। आप सबको आपने मुझे टाइम दिया, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। बस मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ अपनी ओरिजिन फॉलोअर्स के लिए, दोस्तों भाइयों के लिए, कि ओरिजिन जब से आया है तो इसने मार्केट, यानी इससे पहले मार्केट में अलग किस्म के प्लान आते थे। ट्रेजर एनएफटी हो गया, लेवल्स इन लेवल पैकेजेस बाय करने का, प्रोडक्ट सेलिंग का, इस टाइप का। लेकिन लिटरली ओरिजिन ने आकर एक मतलब माहौल सेट कर दिया। अब ऐसा माहौल सेट किया कि आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो सब इसको कॉपी कर रहे हैं। तो आप लोग बाहर से मुतासिर मत हो, आप ओरिजिनल सिस्टम पर हैं, आप एक ब्रांड सिस्टम पर हैं। और सबसे बड़ी बात, अनुबी ब्लॉकचेन का जो नेटिव कॉइन है ना, तो वो इधर से ही होके बनेगा, यानी एलजीएनएस से ए बनेगा और ए से एएनबी कॉइन बनेगा। तो ये किसी और टोकन, किसी और कॉइन फेक या रियल से नहीं बनेगा। तो आप वक्ती फ़ायदे के लिए और अपने बड़े फ़ायदे को मत ख़राब करें, बल्कि आप इसके साथ जुड़े रहें। हो सकता है कि आपको पहले ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा था, अब चूंकि प्राइस नीचे है, कम है, और उसकी भी वजूहात है। मतलब हमारा सिस्टम पहले से ज़्यादा मजबूत से मजबूत होता जा रहा है। लेकिन हमारे लिए, चूंकि हमें पहले लेट सपोज 50,000 आ रहा था, तो अभी 25,000 आ रहा है, लेकिन ये टेम्पररी है। तो हमने मतलब ओरिजिन ने अगर हमें इतना सब कुछ दिया, लाखों लोगों को करोड़पति बना दिया, तो अब अगर ओरिजिन पे थोड़ा सा एक प्रेशर में है, तो हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आने वाला दौर ओरिजिन का ही है। और ये जो पंछी उड़ के किसी और फाउंडेशन पे जाते हैं वक्ती फ़ायदे को हासिल करने के लिए,
तो ये मजबूत लोग नहीं हैं, ये मफादात के लोग हैं। इनको चाहिए कि अगर ओरिजिन ने आपको लिटरली आपकी लाइफ को चेंज कर दिया है, 360 एंगल में चेंज कर दिया है, तो आज भी आप अपने पूरी टीम, अपने पूरे नेटवर्क को इधर जो है डटे रखें और जमे रखें, और वक्ती फ़ायदे को मत देखें, बल्कि आपका जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा है, यानी जब एएनबी कॉइन आएगा, तो मैंने बहुत इस पे रिसर्च किया और मैंने बहुत अपने इंडियन फॉलोअर्स को भी सुना कि हमारा एलजीएनएस टोकन, इसकी सप्लाई जब तेज़ी से हम खुद कम करेंगे ए स्टेबल के लिए, तो रेट कम से कम $9-10 $15 को जा सकता है। तो जो हजरात सिर्फ रेट करते रहते हैं ना, सिर्फ ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल को देखते हैं, और वो लिक्विडिटी को, मार्केट कैप को, रिस्क फ्री वैल्यू को, और मतलब बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीली आ रही है, मजबूत से मजबूत होता जा रहा है, उस पर उनकी नज़र नहीं होती। तो उन लोगों के लिए मैसेज है कि मरकज़ के साथ जुड़े रहें। ओरिजिन इस पूरे इकोसिस्टम का, एलजीएनएस इस पूरे इकोसिस्टम का मदर कॉइन है। ये सोना है, सोना सोना है। लेट सपोज आपने सोना लिया है, आखिरी बात, आपने सोना लिया है, आपके पास सोना है और वो बढ़ रहा है, आपने इसको सिर्फ 6 से 12 महीने के लिए होल्ड करना है, ठीक है। और आपका जितना भी मतलब यूज़ होता है, आप लाइव मतलब यहाँ से आपका घर खर्चा चल रहा है, तो अपने खर्चे के मुताबिक कुछ ना कुछ निकालें, लेकिन अपनी पूरी स्टेकिंग को ख़त्म मत करें, इधर से नेगेटिव होके बाहर मत निकले, वरना फ्यूचर सिर्फ ओरिजिन का है। ये बात मैं लिटरली सबको ओपनली कह रहा हूँ, बात समझ आ रही है? तो आप क्या करें, इस सोने को अपने पास रखें। ये 6 से 12 महीने के अंदर आपको वो देने वाला है जो आपकी सोच है। तो किसी और फाउंडेशन पे या सेम फाउंडेशन के अदर प्रोजेक्ट को प्रमोट करने पे आपका वक्ती फ़ायदा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ओरिजिन जो आपको देगा ना भाई, वो तो कोई अलग ही लेवल का है। बात समझ आ रही है? तो अपने आप को भी मजबूत करें, नॉलेज दें अपनी पूरी। और जो आखिरी आखिरी मैसेज, जो न्यू मेंबर आ रहा है ना आपके पास, तो सिर्फ ये मत करें कि बस उसका पैसा लगवा दिया, उसकी आईडी लगवा दी, और बस वो तुम जानो और वो जाने, आपके दोनों के रास्ते लग। नहीं 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 नहीं, सिर्फ इन्वेस्ट करना और सिर्फ उनको ग्रुप में ज्वाइन करवाना आपका ड्यूटी, लीडर्स का ड्यूटी पूरा नहीं होता है, बल्कि बंदे को ज्वाइन करवाना, बंदे को नॉलेज देना, और बंदे को इस काबिल बना देना कि वो आगे ये चेन इस तरह चलाए और विजन के साथ खड़ा हो जाए। ओरिजिन का जो विजन है एएनबी कॉइन का आने का, तो वो सब उसको ट्रांसफ़र करे और रोज़ाना अपनी कनेक्टिविटी अपनी टीम के साथ तसलसल के साथ वो बढ़ाते चले जाए। तो इंशाल्लाह आप भी कामयाब होंगे, आपके साथ जो नेटवर्क है वो भी कामयाब होगा, और यकीनन जब एएनबी कॉइन आएगा और रेट हवाओं में उड़ेगा, तो ये लोग आपको सिर्फ दुआएं नहीं करेंगे, बल्कि लिटरली यानी दुआ से आगे जाके जो होता है, यानी एक किस्म का रिस्पेक्ट, हाई रिस्पेक्ट करेंगे। तो बस ये थोड़ी सी कुर्बानी देनी है आपने, और आगे आपका फ्यूचर ब्राइट है। तो डटे रहें, लगे रहें, लगवाते रहें, और बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल। थैंक यू सर। जी खान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया। और आप इतने अच्छे तरीके से इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका मैसेज बहुत ही कन्वीनियंटली आपने पूरी कम्युनिटी को जो डिलीवर किया है, बहुत ही काबिल तारीफ है। तो आप हमारे एक वीवन साथी हैं, जो कि हमारे पड़ोसी देश से हैं, और बहुत अच्छा इस प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने अपना एक अच्छा अनुभव साझा किया है हमारे बीच। तो चलिए साथियों, सोहन भाई, यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आमंत्रित हैं। जितेन भाई भी हमारे बीच आ चुके हैं, जितेन चौहान जी। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। मैं चाह रहा था कि जितेन भाई के लीजिए, हाँ, मैं अच्छा कहना अच्छा। चाहता हूँ। जी 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 जी। हाँ, जी जितेन भाई। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि आज एक तो सद्दाम सर का जो प्रेजेंटेशन होता है, मैं अपने दूसरे डिवाइस से सुन रहा था, तो वो एक यूनिकनेस उसमें दिखती है, उनका दिखाने का तरीका और ये सब चीज बेस्ट लगता है, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन के साथ वो सब चीजें भी शामिल कर लेते हैं जो लोगों को विश्वास दिलाने में कि किस प्रकार से सिस्टम आगे बढ़ रहा है और क्यों आगे बढ़ रहा है। और जब इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग सुनते हैं बात, समझते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग किस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं अदर कंट्रीज के अंदर,
तो दोस्तों जरूरत है सिर्फ हमें अपने आप को इस सेशन के अंदर, इस सिस्टम के अंदर बनाए रखने की। मैं इस बात को इस प्रकार से कहता हूं कि ओरिजन एक तपस्या है। जिस प्रकार से मैं 26 साल से इस फील्ड में लगा हुआ था, 26 साल हो गए मुझे इस मार्केट में, और 26 साल से कई प्रोजेक्ट आए और कई प्रोजेक्ट गए, लेकिन एक सोच जो हमेशा बनी रहती थी कि हमेशा ऐसा कोई प्रोजेक्ट हो जिसमें हम लाइफ टाइम बिता सके। और 26 साल में कई सैकड़ों प्रोजेक्ट से गुजरे, तो क्यों ऐसा हुआ है कि सैकड़ों प्रोजेक्ट हमने किए? शुरुआत का जो पहला प्रोजेक्ट मिला था उसी में हम क्यों नहीं टिके रह गए? उसका रीजन ये था कि प्रोजेक्ट नहीं टिकता था, हमारी मजबूरी होती थी कि वो चला जाता था तो हमें दूसरे में जाना पड़ता था, दूसरा चला गया तो तीसरे में जाना पड़ता था। और बचपन से एक चीज हमेशा ये चीज देखने और समझने और सुनने को मिली है कि हमें एक बड़ा अर्निंग का एक मौका मिलना चाहिए। हर व्यक्ति ये चाहता है, लेकिन पहली बार मैं अपने 26 साल के करियर में कहता हूँ, 26 साल पहले जब सिस्टम इस प्रकार के प्रोजेक्ट में स्टार्ट हुआ, तो 26 साल की तपस्या का परिणाम ये मिला है ओरिजन। और अब ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि अगले कई 26 वर्ष निकलने हैं इसी प्रोजेक्ट के अंदर। यानी कि जो इस सोच से आएगा, जिनने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल इस प्रोजेक्ट में निकाले हैं ना, उनकी लाइफ चेंजेस हो चुकी है पूरी तरह, 100%। लेकिन आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल आप इसमें रुक जाओ, उसके बाद आपको रुकने की आवश्यकता नहीं, सिस्टम ऑटोमेटिक रोक लेगा आपको। 1 साल भी अगर आप इसमें रुक जाते हैं, 1 साल भी अगर वर्क करते हैं, 1 साल भी आप इसके बारे में जानकारी लेते हैं, हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि आप ऑप्शन है कि आप काम करो या ना करो, लेकिन आप 1 साल तक इसका वेट करो। अगले 1 साल में आपको हम लोग बोले कि आप चले जाओ या कोई सिस्टम से जाएंगे, तो आप जा नहीं सकते, क्योंकि सिर्फ आप अपना नॉलेज ले लो, उसके बाद आप जा नहीं सकते। तो सद्दाम सर का जैसे बताने का तरीका है और जिस प्रकार से वो बताते हैं प्रोजेक्ट के बारे में, जिस प्रकार से प्लान प्रेजेंटेशन के साथ साथ डेस्क स्कैनर और पूरे ब्लॉकचेन वगैरह सारी जानकारी जब वो देते हैं और हर एक चीज खोल के जब दिखाते हैं, तो ये सिर्फ आपको विश्वास दिलाने के लिए है। उनके पास नॉलेज पर्याप्त है, उनका काम भी पर्याप्त है और वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को जब दिखाने के लिए करते हैं तो आप इससे शिक्षा भी लीजिए। बाकी तो धीरे धीरे सब चीजें आपको समझ में आएगी। तो थैंक यू वेरी मच सद्दाम सर, बहुत अच्छा लगता है जब आप आते हैं, वेट होता है कि हाँ सद्दाम सर आएंगे तो बिल्कुल अ, सुनने के लिए सारे लोग तत्पर हो जाते हैं। तो थैंक यू अशोक सर। जी जितेन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा और शेयरिंग पार्ट भी एक नए विवन साथी का हमारा बहुत ही जानदार शानदार। तो इसी तरह के सेशन हमें कंटिन्यू इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, सीखना है, समझना है, क्योंकि हमें किस वक्ता की कौन सी लाइन, कौन सी बात इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमें समझ में आ जाए, ये हमें पता नहीं चलेगा। प्लान तो खैर एक अपनी जगह है, लेकिन कई मैकेनिज्म, कई चीजें, कई हमारे स्पीकर्स आपके लिए ढूंढ के लेकर आते हैं, तो उससे हमें इस प्रोजेक्ट में आगे तक बने रहने के लिए मजबूती मिलती है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, और बाकी बातें होती रहेंगी, हम मिलते रहेंगे। तो आपका दिन आज के लिए शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे घर के जूम में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।